Viewers, today we tell you about the how to stop the nose bleeding. In medical use, the nose bleeding is called the epistaxis. It is not a disease, but it is due to the dry nose. And during the hot season, means summer season, nose capillaries of the nose are dry and burst, then gives the blood. It is the cause of the nose bleeding. Now, how to prevent our nose from bleeding? When you have the sudden nose bleeding, then the position will be changed. I tell you the position of the body. You sit down calmly in upright position. You do not move. Upright position means you sit down on straight position, means you cannot be moved backward and forward direction to your head, and cannot be moved left and right direction to your head. Upright position, and tilt your head on slightly back side, यानी अपने सर को थोड़ा सा पीछे की तरफ करके रखना है. If you move your head on upright and back position continuously, then the blood are drained in your stomach or in your throat, and you feel the vomit, and it is the cause of the bloody vomit. When you want to rid from it, then take an onion and remove the cap of onion from both sides, and remove the upper peel of the onion. Then cut it into 2 pieces like this, and inhale the smell of this onion continuously, because from the inner side, not from the outer side, because the onion contains the sulfur which act as the blood clotting and the blood thickening agent, and stopping to recurrent the nose bleeding. And the other method, to apply the cold compressor across your nose bridge. Now here is the nose bridge, and you apply the cold compressor on it like this, slightly with the pressure, for 5 to 10 minutes, and it helps to contract your vessels and reduce the swelling and the bleeding of the nose. And the other method, pack gently your nose with the cotton plug or cotton ball like this, and pack your nose like this with the cotton ball. Apply here. This cotton ball is wet with the cold water, and other than tilt your head forward and apply pressure to the nostril. Now apply head forward means like this, and apply the pressure on the soft part of the nose, and after this you want to use the humidifier on your child room, on your children room, or in your room if you have the nose bleeding in the summer season, because the humidity are very necessary in your room. If you have not the
humidifier, then you want to wet your towel, and this towel is kept in your room. If it is dry, then you do this process is continuously because the humidity are present in your room. And other methods, don't be dry inside area of the nose, and you apply any oil, means the mustard oil or coconut oil. These oils cannot be harmful for your nose. Apply these oils inside your nose because the nose be greasy, and due to the greasy nose, the blood vessels or the capillaries cannot be burst. Because in the hot season and in the summer season, our minute capillaries which are present inside the nose cannot be bear the heat, and these are burst and nose start the bleeding. व्यूअर्स, हमने आपको ये बताया है, अभी हम इसको उर्दू में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमने आज क्या है नोज़ ब्लीडिंग को रोकने का तरीका आपको बताया, क्योंकि मेरी कुछ व्यूअर्स ने मुझे ये कहा कि हमें बहुत ज़्यादा नोज़ ब्लीडिंग होती है, यानी कि नक्सीर आती है नाक से। नक्सीर को दूर करने का तरीका उन्होंने पूछा था और कहा था कि आप ये अपलोड करें। इस वजह से मैं आपको ये नक्सीर के दूर करने का तरीका बता रही हूँ। इसे मेडिकल के व्यू में एपिस्टेक्सिस कहा जाता है, और ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें आप परेशान हों। ये कभी कभी ऐसा होगा कि सख्त गर्मी के मौसम में अगर आपके नोज़ के अंदर पाई जाने वाली कैपिलरीज़ बहुत सेंसिटिव हैं और वो उस टेम्परेचर को बियर नहीं कर पा रही, तो और फिर नोज़ भी अंदर से ड्राई है, तो वो बस्ट हो जाएंगी। बस्ट होने से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड ब्लीडिंग स्टार्ट होने से क्या होगा कि आपके नोज़ के ऊपर, यानी घर वाले भी परेशान होंगे, आप भी परेशान होंगे, आप समझेंगे कि कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई बीमारी हो गई। तो ऐसा नहीं है। आपने इसमें क्या करना है, हमने आपको बताया कि आपने हेड को ऐसा नहीं करना कि यूँ कभी डाउन कर रहे हैं कभी अप कर रहे हैं, कंटिन्यू अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए ऐसे अपवर्ड करने से क्या है, ब्लड सारा थ्रोट में चला जाएगा और वहाँ से स्टमक में चला जाएगा, जिससे आपको हो सकता है कि ब्लीडिंग वोमिटिंग भी हो जाए और मतली होगी, मीन्स नोज़िया होगा, तबीयत ख़राब होगी। तो ऐसा नहीं करना है। ना तो आपने अपवर्ड डाउनवर्ड करना है और ना ही आपने लेफ़्ट राइट साइड पर मूव करना है। आप किसी भी पोजीशन में आपने फ़ौरन यूँ स्ट्रेट एकदम बैठ जाना है, सीधा सीधा के बैठने के बाद टिल्ट योर हेड, यानी अपने हेड को आपने थोड़ा सा यूँ झुकाव करना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा झुकाव करना है। ये पिक मैं शेयर करूँगी आपको, आप जब उसमें देखेंगे तो आपको ये थंबनेल में आपको लगी हुई नज़र आ रही होगी। हमारी ये पिक हमने ये लगाई है, इसे गौर से देख लें। वहाँ हमने पोजीशन बताई है कि सही पोजीशन क्या है और जो रॉन्ग है उसको हमने क्रॉस किया है। तो इस पोजीशन में रख के आपने क्या करना है, आपने नोज़ पर यहाँ पर थोड़ा सा, कई तरीके हमने बताए हैं, थोड़ा सा प्रेशर, नर्म हिस्से पर, सॉफ्ट पर प्रेशर अप्लाई करना है, फिर छोड़ देना है, फिर थोड़ा प्रेशर अप्लाई करना है, फिर छोड़ देना है। ये प्रोसेस आपने कंटिन्यू 5 से 10 मिनट तक करना है। उससे क्या है, ब्लीडिंग आपकी स्टॉप हो जाएगी। परेशान नहीं होना, आराम से काम करना है। अगर नोज़ ब्लीडिंग हो रही है तो परेशान ना हो, वो सही हो जाएगी। दूसरा आपने क्या करना है कि एक टावल ले लें, छोटे बड़े टावल जो वो ले लें, या कोई कपड़ा ले लें, छोटा टावल नहीं है तो कोई थोड़ा मोटा कपड़ा ले लें, उसे कोल्ड वाटर में डिप कर लें। कोल्ड वाटर में डिप करके उसे नोज़ के ऊपर इस हिस्से पर जहाँ ब्रिज बना होता है, ऊंचाई सी होती है, वहाँ पर उसको अप्लाई करके थोड़ी देर यूँ प्रेशर डाल के रखना है, फिर हटा लेना है, फिर प्रेशर डालना है, हटा लेना है। दूसरा कपड़ा भी उसमें रखें, उसको रिमूव करें, फिर दूसरा कपड़ा रख लें। जैसे आप इस तरीके से करेंगे। नोज़ के यहाँ नहीं, हमने कहा हमने नोज़ के ऊपर का, क्योंकि उसकी जो ठंडक होगी उस ठंडक से ब्लड क्लॉट हो जाएगा और ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगी, और वो जो आपके अंदर कैपिलरीज़ हैं वो थोड़ी, उनको कोल्डनेस की वजह से, कोल्ड की वजह से वो क्या है, ब्लीडिंग को स्टॉप कर देंगी। दूसरा हमने आपको ये तरीका एक और बताया कि आप क्या करेंगे कि आप एक कॉटन प्लज लेंगे, कॉटन का फाया लेंगे या कपड़ा लेंगे, उसको आप ठंडे पानी में गीला करके नोज़ के यहाँ जहाँ से ब्लीड कर रहा है वहाँ पर आप यूँ अप्लाई कर देंगे थोड़ी देर और फिर हटा लेंगे। लेकिन हेड आपने ऐसे ही रखना है, अप्लाई कर लेंगे और फिर हटा लेंगे। उससे भी आहिस्ता आहिस्ता नोज़ ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने आपको ये बताया है कि
आप ये जब करेंगे तो इस तरीके से नोज़ के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, उनकी स्वेलिंग दूर हो जाएगी, उनकी ब्लीडिंग भी जो है वो बंद हो जाएगी। फिर ये है कि आपने ओनियन को लेना है, ओनियन को इस तरीके से कट करना है 2 पीसेज में, और ओनियन की ये अंदर वाली जो साइड है इस साइड को आपने इनहेल करना है, थोड़ा थोड़ा सांस खींचना है और इसको इनहेल करना है, अंदर को लेना है इस सांस को, क्योंकि इसमें सल्फ़र होता है। ये सल्फ़र क्या करेगा, अंदर जाके आपके उसको ब्लड को रोकेगा और ब्लड को थिक कर देगा, जिससे नोज़ ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। फिर हमने आपको ये बताया कि नोस्ट्रिल पर यहाँ आपने प्रेशर भी अप्लाई करना है, वो भी हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद है ह्यूमिडिफायर। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करें, क्योंकि गर्मी है हम ये नहीं कह सकते कि आप स्टीमर चला के रख दें रूम में। आप एक टावल लें। टावल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टावल देर से सूखता है। टावल लें, टावल को गीला करें, गीला करके उसको कोई ऐसी जगह देख लें जहाँ पर आप टावल को टांग दें, और नीचे बेशक आप कोई टब रख दें या कोई चीज़ रख दें, जिससे कि वो टावल गीला रहेगा और उसकी नमी रूम के अंदर फैलती रहेगी। मसला ये है कि आपको नोज़ को वेट रखना है, गीला रखना है, सूखने नहीं देना, और ब्लड वेसल्स तभी बस्ट होंगी और ब्लीडिंग होगी, उनको बस्ट होने से बचाना है। वरना क्या है, ह्यूमिडिफायर मिलता है वो आप ले सकते हैं, वरना आप टावल को रखेंगे और जब सूख जाए टावल तो दोबारा आप उसको गीला कर देंगे। आपको पता चल जाएगा कितने टाइम के लिए हमने टावल को रखना है, कि टावल सूख जाता है तो फिर हम दोबारा गीला कर दें। इसके बाद आपने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है पीने में, क्योंकि आप पानी जब ज़्यादा पिएंगे तो उससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहनी चाहिए। अगर बॉडी हाइड्रेटेड नहीं होगी, पानी कम पिएंगे, तो भी सबसे पहले इफ़ेक्ट नोज़ पर होगा, क्योंकि नोज़ के अंदर जो कैपिलरीज़ है वो बहुत, कैपिलरीज़ तो होती ही माइन्यूट हैं, लेकिन उसकी कैपिलरीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाती हैं। क्यों ड्राई हो जाती है जल्दी, क्योंकि आपको मालूम है कि हम वहाँ से सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। ये प्रोसेस कंटिन्यू हमारी लाइफ के साथ चल रहा है, तो वो हमारी नोज़ को जल्दी ड्राई कर देता है। वो हवा ड्राई कर देगी, तो हमें नोज़ को ड्राई नहीं रखना है। ड्राई हमारी तब नहीं होगी नोज़ जब हम पानी को पिएंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे और हम खुद को हाइड्रेटेड रखेंगे, तब हमारी नोज़ जो है वो ड्राई नहीं होगी। इसके बाद हमें क्या करना है, बस इस बात का ख्याल रखना है कि आप सारा जो प्रोसेस कर रही हैं, हमने क्यूट सी एक गुड़िया ली है, हमने कहा चले आप थोड़ा चेंज हो जाएगा, आप भालू देख देख के थक गए होंगे, तो आपने इसको यूँ रखना है, हेड को देखे इस तरीके से रखना है, ताकि आपको थोड़ा चेंज हो जाए, आपको फील हो कि भाई हमने इसके ऊपर आपको बताया है। अच्छा, इसके बाद क्या है, हमने आपको हाइड्रेटेड का कहा। हाइड्रेटेड के अलावा आपने क्या करना है, एक और भी तरीका है, आपने पिलू यानी 2 और अगर 3 ले सके, 1 2 या 3 पिलूज़ आपने लेने हैं। पिलू लेके यानी हम क्या कहेंगे, एलिवेटेड योर हेड, 1 2 और 3 पिलूज़, यानी सर को थोड़ा ऊंचा रखें, 2 या 3 तकिए लेके रखने हैं, उससे सर को ऊंचा रखें, ऐसे करके आप लेटे। आपने बिल्कुल, वो पुराना वक्त था जब लोग क्या किया करते थे कि लेट जाओ बिल्कुल सीधा करके लेटा देते थे। अभी अगर आप ऐसा करेंगे तो सीधा करके लेटने से उनको ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, जिसको ब्लीडिंग हो रही है, बल्कि उनको ब्लीडिंग क्या होगा, स्टॉप ना होगी, उनके थ्रोट में जाना शुरू कर देगी, जिससे उनका हलक खुश्क होगा, और अगर ज़्यादा स्टमक में चली गई तो उनको वोमिट होगी और बल्कि उनके नुकसानदेह साबित होगी। तो इसलिए ऐसा आपने नहीं करना है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि जैसा कि हम जानते हैं, हमारा मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल है, कोकोनट ऑयल है, ये ऑयल्स हम कॉमनली अपने घर में यूज़ करते हैं, आप सर पर लगाते हैं। ये तेल जो है नुकसानदेह नहीं होता। आप अपनी जो हमारी ये वाली जो फिंगर है, ठीक है, जो लास्ट वाली फिंगर है, इस फिंगर में थोड़ा सा आप इसको अच्छे तरीके से धो के हल्का सा इसमें ऑयल लेके और अंदर से नोज़ को थोड़ा सा ग्रेजी कर लें। ग्रेजी करने से भी ये होगा कि नोज़ को हल्का सा ग्रेजी कीजिएगा, ज़्यादा ऑयल भी ना लगा दें उसमें। ग्रेजी करने से ये होगा कि आपकी जो कैपिलरीज़ होंगी वो एक तरह से वेट रहेंगी और ग्रेजी रहेंगी और बस नहीं होगी, तो भी आपको नोज़ ब्लीडिंग नहीं होगी। तो नोज़ ब्लीडिंग अगर सिर्फ आपको समर्स में हो रही है तो उसका रीज़न ये है, लेकिन अगर आपको व्यूअर्स और कोई तरीक़ाकार है और आपको वक्तन फ़वक्तन होती है, बार बार होती है नोज़ ब्लीडिंग, तो वो भी आप बताइएगा। आप फिर डॉक्टर से भी रुजू कर सकते हैं, लेकिन आप अवॉइड करें। आप छोटे छोटे ये होम रेमेडीज़ करके आप इसको दुरुस्त कर सकते हैं। आपने ये परेशान नहीं होना, और आपने ये नोट करना है कि आपके चाइल्ड की या आपकी अपनी नोज़ ब्लीड कितने टाइम के बाद कर रही है। क्या आपके ये 1 हफ़्ते के बाद कर रही है, या क्या 1 मंथ के बाद कर रही है, और क्या 1 डे में 1 टाइम कर रही है, 2 और 3 टाइम कर रही है। उस वक्त में टाइम क्या है, क्या उस रोज़ गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी
या गर्मी की शिद्दत कम है, क्या आप एसी में बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं या क्या आप एसी में ज़्यादा नहीं बैठ रहे, आपने अपने आप को पूरा एग्जामिन करना है, नोट करना है और अपने पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद आप पूछ सकती हैं, फिर हम आपको दूसरी और होम रेमेडीज़ बताएंगे, क्योंकि इसके कई रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से नोज़ ब्लीड करती है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी नोज़ ब्लीड जो है वो ठीक हो जाएगी। अब हमसे ये क्वेश्चन अराइज़ किया था कमेंट्स में किसी ने, इस वजह से हम कह रहे हैं। और कुछ के पास हमारा व्हाट्सअप भी है, नंबर भी है, तो वो कॉल करके पूछ लेती हैं या कह देती हैं या पूछ लेते हैं, कह देते हैं। तो आपको और कोई वीडियो अगर चाहिए होगी, नीड होगी, किसी प्रॉब्लम कोई ऐसा है आपको, तो वो आप बताइएगा। अभी हमें और किसी ने ये भी कहा है कि आप और जो हमारे अंदर रूट्स जो हैं इनकी, जैसे कुछ लोगों को डॉक्टर्स कहते हैं कि रूट कैनाल करवाएं, मीन्स अगर उनके दांतों में दर्द है, उनकी दाढ़ें ख़राब हो रही हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो उसको भी दूर करने का उन्होंने तरीका हमसे कहा है, तो हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या करें, अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद है तो आप चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, ताकि जैसे ही हम अपनी कोई भी वीडियो बनाएं, वीडियो को अपलोड होते ही आपको किसी से पूछना ना पड़े, वीडियो डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाए और आप हमने जो भी आपको मेथड बताया उसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखें। और अप्लाई करने के साथ साथ अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा है घर जिसमें ये काम होता है कि बच्चों को नोज़ ब्लीडिंग होती है, बड़ों को नोज़ ब्लीडिंग होती है, तो आपको ये भी एक सदका जारिया है और एक नेकी है कि आप अगर उन्हें ये तरीक़ाकार बता देंगे, समझा देंगे, तो फिर आपके लिए ये बहुत फ़ायदा है और ये एक नेकी है, आपको ज़ाहिर इसका अजर भी मिलेगा। आप इसको ज़रूर अप्लाई करें और आगे इसको सदका जारिया समझ के फैलाएं। ओके, अल्लाह।